Hello everyone, this is Payal Goyal and welcome to Positive Talk. And this one is related to wellness. As you would have seen through my profile that we tried to do this episode live, but there was certain glitch. We spent almost half an hour, but were not able to do. But that's okay. So coming back to what the today's show is about, as I told that time is so different these days. Lot of things have changed. The way we see the things, the way we perceive our life, so many changes. But there is one thing that has not at all changed. That is that whenever there is any good thing or the bad thing happens, it brings with it lot of rumors, myths, false facts. और ये कोरोना भी इससे कोई डिफरेंट नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ अटैच टू इट। और हमें आज की डेट में एक तो मैक्सिमम मैसेजेस आर रिलेटेड टू कोविड कोरोना। और ह- कितने सारे मैसेजेस, सेकंड और थर्ड मैसेजेस लाइक कि आप ये रेमेडी यूज करो, आपको कोरोना नहीं होगा। दिस इज द होम रेमेडी विच यू कैन अडॉप्ट टू। और अगर आपको हुआ है, आप ठीक हो जाओगे, ये काढ़ा वो काढ़ा। So, to burst those myths and to tell us about the holistic way of living, which is not going to help only in our present situation, but also in future too, I have my today's guest, Dr. Sananda here. Hello, Dr. Sananda. Welcome to the show. थैंक यू सो मच पायल जी फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे मिथ्स को हम बस्ट करने वाले हैं जो रिलेटेड टू आयुर्वेदा है, रिलेटेड टू कोविड है। So let me first introduce Dr. Sananda to you. She is an Ayurvedic physician and a passionate Nadi Chakra expert who work for in underprivileged women and children, especially from the rural areas of Bihar. She is also a Nadi Samman award winner and a Z Health Conclave winner. She aims to spread the knowledge of Nadi Chikitsa and Ayurveda everywhere and mainly in the rural areas. And one more inspiring thing about her is that in today's time everyone just wants to go abroad. एक बार पढ़ाई खत्म हुई, जॉब लगी, and we just want to go US UK, मतलब इंडिया से बाहर कहीं भी. During those times she declined the offer to work in US so that she can serve her own country India. और जब मुझे थोड़े महीने पहले, few months back, I came to know about this. From that time it was in my mind that I am going to have a talk about this topic in this show. But now our priorities have changed, time has changed, so something else came over. But I just hope after some time I'll have the talk over this thing also, because this is truly inspiring. So coming to the today's topic, today's theme, ma'am, as I told, my first question to you is that there are so many messages circulating around. आप ये काढ़ा पी लो, आप ठीक हो जाओगे। और अगर आपको नहीं भी हुआ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। Whatever limited knowledge I have about Ayurveda, it is कि not everything is suitable for everyone. आयुर्वेदा में सब कुछ एक बॉडी टाइप के थ्रू होता है, और प्लस एक लिमिटेड क्वांटिटी है। यू कांट जस्ट टेक अनलिमिटेड और आप सारी चीजें मिक्स करके ले लो। सो व्हाट इज योर टेक, मींस मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, इज दैट करेक्ट, और हाउ टू गो अबाउट दीज थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म where we can burst the myths about Ayurveda. And thank you so much for the lovely introduction. And this is also my purpose of life, to spread the real knowledge, the authentic knowledge of Ayurveda to all the people around. So as you asked कि ये जो काढ़ा लेते हैं और हम लोग जो अभी कुछ भी पढ़ते हैं दादी नानी के नुस्खे, ये कितना सच है, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो आयुर्वेद को है हम दो पार्ट में ले सकते हैं। फर्स्ट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, सेकेंड वन इज आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मीन जो हेल्दी इंसान है उसकी हेल्थ की पहले रक्षा करना। दिस शुड बी द फर्स्ट एम ऑफ चिकित्सा। एंड द सेकेंड वन इज कि उसके बाद भी अगर कोई बीमार पड़े तो उसकी चिकित्सा करना। एंड जो हमारे दादी नानी ये लोग दे वेर वेरी, हमारा जो हम सबके घर में एक छोटी सी फार्मेसी तो होती है जिसको हम किचन बोलते हैं। कुछ भी हुआ तो दौड़ के गए किचन में और कोई भी दूध ले, खराश हुई गले में तो लौंग रख लिया, या कुछ कट गया तो हल्दी लगा लिया। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन
जो हमारे दादी नानी थे उनके पास नॉलेज था कि कौन सी गर्म तासीर की चीज है, कौन सी ठंडी तासीर की चीज है, और अकॉर्डिंगली वो लोग यूज करते थे। और ये चीजें हमारे जनरेशन में काफी मिसिंग है। सो हम लोग ब्लाइंडली वी कैन नॉट फॉलो एवरीथिंग। जो हमारे जो रेमेडीज, होम रेमेडीज है, दोज कैन बी टेकन एज फर्स्ट एड, because Ayurveda is a full-fledged science. Yes. So a science cannot be only limited to kitchen, but it's a full-fledged thing. जो हम लोग चीज कर रहे हैं होम रेमेडी, वो हम सिर्फ फर्स्ट एड के तौर पे ले सकते हैं, और उसके बाद हमें जरूर अपने किसी स्पेशलाइज्ड वैद्य या आयुर्वेदिक फिजिशियन, उससे हमें कंसल्ट करके ही उसको फिर कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी चीज हम ले रहे हैं, चाहे वो काढ़ा ही क्यों ना हो। ओके, सो इट्स नॉट कि आप बस ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो, इट विल कीप मोर हार्म। मैं अगर आपको एक अपना एग्जांपल दूं, जब ये फर्स्ट वेव थी, आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ थ्रोट पेन, और वो आजकल तो थोड़ा भी थ्रोट पेन होता है हम लोग डर जाते हैं, तो वही मैंने काढ़ा लिया, दिन में 3 से 4 बार काढ़ा ले रही थी। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग द वार्म वाटर, एंड देन आई जस्ट, मेरे को इतना गले में ना लाइक बहुत ही कुछ अजीब सा हो गया है। व्हेन आई कंसल्टेड द डॉक्टर, दे सेड कि इतना बार बार नहीं लेना है कोई भी चीज तुमको, ठीक है काढ़ा लेती हो, वंस इन अ डे ले लो या ट्वाइस इन अ डे ले लो, एंड अडॉप्ट व्हाटएवर लाइफस्टाइल यू आर अडॉप्टिंग। ये नहीं कि आप नॉर्मल पानी पी रहे थे एकदम आप सारे टाइम गर्म पानी पी रहे हो। सो एट दैट टाइम ना लाइक तो मेरे को थोड़ा अकल आया कि ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करना है। थैंक यू क्योंकि डॉक्टर। हमारी प्रकृति डिफरेंट होती है, हमारी प्रकृति डिफरेंट है। वात पित्त और कफ प्रकृति के लोग होते हैं। सो इफ पित्त प्रकृति के लोग वो बहुत ज्यादा काढ़ा लेने लगे जो कि गर्म तासीर की होती है, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको चेस्ट बर्न होने लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वही हम लोग, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हम करें वो प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंडर ही करें। एग्जैक्टली, हम बिना सोचे समझे कि यार ये तो हार्म नहीं करेगा, एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस insight. And my second question is like, what role does Ayurveda play in treating the COVID, especially if you have mild symptoms? Can it be treated at home? या फिर अगर आप एक रिकवर हो गए हो तो रिकवरी में how it is going to help us? See, there are many, जो हमारी आयुर्वेद में चरक संहिता है, आचार्य चरक की लिखी हुई चरक संहिता, उसमें इतने वास्टली उन्होंने अबाउट फीवर, एनी टाइप ऑफ फीवर कैन से, इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड इन दैट ही हैज क्लियरली मेंशन्ड कि हर स्टेप में हमें कैसे ट्रीट करना। और बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, वी आर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, वी हैव ट्रीटेड कोविड पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन। माइल्ड सिम्टम्स आते ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही आपको लगे कि हल्का फ्लू लाइक सिम्टम्स लगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसी टाइम आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, उतनी जल्दी हम लोग एक्शन लेके वी कैन जल्दी उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। So is there something that we can adopt as a lifestyle to treat these symptoms, the common symptoms, या फिर डॉक्टर की एडवाइस से ही we should go? No, I'll just tell you the general guidelines which everybody should follow at this point of time. बहुत जरूरी है अभी follow. Okay. The first thing is, जैसे आपको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स लगे, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कोरोना हो सकता है। क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज बिकमिंग अ रियल डिफिकल्ट सिचुएशन। और वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी मिंगल करते रहते हैं, and they are spreading it to the family members also. So if somebody gets this flu-like symptoms, the first and the foremost thing that has to be done is to isolate yourself in a room. अपने और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो और जितने भी फ्रूट्स हो, इन्फेक्शन के फेज में हमें वो अवॉइड करना चाहिए। जो भी चीजें नॉन वेजिटेरियन फूड हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फ्रूट्स हो, those things which are heavy to digest, उन चीजों को हमें सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। एंड जो घर का बना हुआ सिंपल दाल चावल खिचड़ी सूप हो, लिक्विड सेमी सॉलिड जितने भी खाने होते हैं, उस जो गर्म हो फ्रेशली बना हुआ हो, उन चीजों को हमें जल्दी से जल्दी अपने रूटीन में, अपने डाइट में शामिल कर देना चाहिए।
और एटलीस्ट फॉर 1 week टिल द सिम्टम्स, और गर्म पानी पीते रहना चाहिए, दिन में 2 बार गर्म पानी पीना चाहिए, एंड बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर पीना चाहिए। जब हम पानी को बॉइल करके कूल करते हैं ना, इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बॉइल्ड एंड कूल वाटर दिन पीते रहें। एंड आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकेटेड वाटर बताए गए हैं, अलग अलग टाइप के हर्ब्स के साथ हम लोग मेडिसिन पानी को डिकॉक्शन जैसा बनाते हैं, और उसको हम थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेते रह सकते हैं, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो बढ़े नहीं, जो मल्टीप्लाई नहीं हो, वो जो वायरस हमारे शरीर में गया है वो मल्टीप्लाई नहीं। इसलिए उसको फर्स्ट स्टेज में ही हमें लंघना बोलते हैं इसको, यानी कि जो लघु आहार जैसे लाइट जो डाइट मैंने अभी बताया, इन सब चीजों को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और इसमें स्पेशली जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, या मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, ये सब दाल पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, इन चीजों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। Okay. So, doctor, thank you so much for this. Like this, you said कि boiled water लेना चाहिए, but most of the time we just think कि RO का water पी तो रहे हैं, तो what's the need of boiled water? तो RO water है, still we need to boil it and then cool it and drink. यस, डेफिनेटली आरओ का पानी भी है, जैसे मैंने आपको बताया, पानी को कितनी देर हम बॉईल करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉइल्ड एंड 5 मिनट्स तक बॉईल किया हुआ पानी, इट बिकम्स इजीली डाइजेस्टेबल, चाहे वो आरओ का पानी ही क्यों ना हो। आरओ का पानी इज जस्ट ट्रीटेड विद it's a treated water but not boiled. So boiled water makes it easily digestible. Okay. So thank you डॉक्टर फॉर दिस इंसाइट। ये तो बिल्कुल नहीं पता था, और आई थिंक बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये नहीं पता होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि ठीक है कोई उसमें कीटाणु नहीं है तो इट्स सेफ, इट्स इजी टू डाइजेस्ट। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज कि आज के डेट में मैं बहुत सारे मैसेजेस ग्रुप्स में ऐसे भी पढ़ती हूँ कि अगर किसी की फैमिली में अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं भी है, नोन में कोई नहीं है, बट आसपास मैसेजेस के थ्रू, न्यूज के थ्रू पता चल ही रहा है, एंड इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड द न्यूज ऑल्सो, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि, और फिर इसकी वजह से ना लोगों को पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक। सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन अडॉप्ट, एनी लाइफस्टाइल और एनीथिंग स्पेसिफिकली यू टेल फॉर दोज पर्सन्स सो दैट दे कैन रिमेन काम, और अगर पैनिक अटैक आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम उस टाइम पे? सी, जैसे मैंने बोला, एक्सेप्टेंस एक चीज तो हमें आज के टाइम पे, आज जैसा सिचुएशन हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन बी इन्फेक्टेड, एंड वंस वी एक्सेप्ट द थिंग्स, मेनी थिंग्स बिकम्स इजियर, आगे का चीज इजियर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग पैनिक में भी आ जाते हैं कि हमें हो गया तो क्या करेंगे। पैनिक से हमारी इम्यूनिटी और कमजोर होती है। जो हमारा जो सत्व होता है, सत्व यानी कि जो हमारा मानसिक जो बल होता है, या जो पॉजिटिविटी होती है हमारी, कम है, एंड हम जो होते हैं वही हम स्प्रेड करते हैं अपने आसपास, अपनी फैमिली को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। अगर आपके फैमिली में भी किसी को अगर पैनिक हो रहा है तो उसको भी आप पॉजिटिविटी से ही ट्रीट करें, पॉजिटिव थॉट्स दें उनको। अगर किसी को फैमिली में हुआ है तो उनको आप चैंटिंग सुना सकते हैं, अलग अलग चैंट्स हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि चरक संहिता में आचार्य चरक ने मेंशन किया है कि कोई फीवर हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये कैसे हुआ है, जिसका ओरिजिन में क्वेश्चन हो, या फीवर बार बार आ रहा हो, तो विष्णु जी के नाम को चैंट करना चाहिए, बिकॉज उसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपके सेल्स को इफेक्ट करती है। So it's a wonderful science. Indian science has wonderful, theories behind everything. So Vishnu Sahasranam हुआ या गायत्री मंत्र हुआ, ये सब chanting, and faith heals everything. आपको faith होना चाहिए कि you will be treated, you will come out of it. In my family, there's a 94-year-old person who got, who recovered from COVID. And these kind of messages we should be spreading. पहले तो न्यूज हमें देखना बंद करना है, because न्यूज में सिर्फ हम देख रहे हैं इतने लोग मौत हुई, there's so much of negativity news, there's nothing positive. हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए पॉजिटिव चीजें न्यूज भी देखनी चाहिए, एंड आसपास जितने लोग हैं अगर कोई है तो उनको कॉल करके उनको और पॉजिटिव
मैसेज दीजिए थ्रू सोशल मीडिया और यू नो जैसे भी आप दे सकते हो, जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी. Yes, the way you are doing, I have been following your post, and those are full of positivity. And yes, you correctly said, acceptance is the key. Accept करोगे कि कुछ हो भी सकता है या कुछ गलत हो भी गया है, then it becomes more easier to heal and to come out of that situation. That's very true. Yes. और मैम आज के टाइम में if you see the worst affected, the most affected are kids. ऐसा लगता है बच्चों से तो जैसे पिछले 1-1.5 साल से ना उनका बचपन ही छिन गया, ना वो खेलने जा सकते हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं. दिस इज द एज कि वो फ्रेंड्स बनाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उनका इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है. सो व्हाट आर योर मैसेज टू पेरेंट्स कि वो बच्चों को कैसे एंगेज कर सकते हैं या क्या उनके साथ एक्टिविटीज करें विच विल हेल्प इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ देयर माइंड एज वेल एज बॉडी. सी फर्स्ट तो जो बच्चे हैं वो पिछले साल से 1 साल से आई मीन दे आर, तो जो बच्चे हैं ना दे आर डूइंग ऑसम. ये जो मतलब इतना पेशेंस लेवल उनका है, इट्स अमेजिंग. इतना पेशेंस रखा हुआ है और बड़ों से ज्यादा बच्चे समझ रहे हैं कि कोविड इज नॉट गुड. बट बच्चे ही हैं, कभी उनको मन नहीं करता है कि कब तक ये चलेगा. सो हमें उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट करते रहना चाहिए विथ पॉजिटिविटी अगेन. एंड यू नो जो बच्चे हैं अभी, जैसे मैंने फूड के बारे में बताया, तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें उनके फूड पे ध्यान देना चाहिए. सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फूड हो वही उनको खिलाएं, जिससे कि ज्यादा चीज या ज्यादा बर्गर पिज्जा ये सब चीजें ना खिलाएं. ये सब चीजों से उनकी मेटाबॉलिज्म कमजोर होती है. बच्चे ऑलरेडी दे आर इन द ग्रोइंग फेज, जब वो अपनी इम्यूनिटी नेचुरली बिल्डअप करते हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उस समय हम लोग उनके खान पान पे ज्यादा ध्यान दें. सो उनको अच्छा खाना खिलाइए, घर का न्यूट्रिशियस खाना खिलाइए. अगेन उनके बॉडी टाइप, बिकॉज एक और मिसकंसेप्शन है कि न्यूट्रिशियस खाना मतलब 1 गिलास दूध पिला दिया, ये पिला दिया. नो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मिल्क लेने से आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या कोई पर्टिकुलर फूड आइटम से क्या उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. द मदर एंड द पेरेंट्स दे हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. एंड अकॉर्डिंग टू द बच्चे के बॉडी टाइप यू हैव टू उनको फूड खिलाना है, उनका प्रॉपर उनका डाइट मेंटेन करना है. देन द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फिटनेस. अब सब कुछ एक घर में एक रूम में सीमित हो चुका है, लिमिटेड हो चुका है. तो उसमें ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए. जैसे सूर्य नमस्कार है. सूर्य नमस्कार एक बहुत ही वंडरफुल योगा एक्सरसाइज है. इट हैज 12 स्टेप्स एंड वेरी इजी एंड वेरी फन फॉर किड्स. तो ये सूर्य नमस्कार मैं हमेशा से ही रेकमेंड करती हूँ, बच्चे हो बड़े हो सबको, कि उनको जरूर करना चाहिए सूर्य नमस्कार. इससे जो फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस होता है ये मेंटेन होता है. सेकेंडली, कुछ एज अ पेरेंट हम लोग कुछ गेम्स बना सकते हैं उनके लिए, या वो एनकरेज कर सकते हैं कुछ गेम्स के लिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो एंड उनको इन्वॉल्व करे अपने कामों में भी. बिकॉज चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस, दे फील लेफ्ट आउट कि मम्मी पापा तो अपना काम कर रहे हैं या दे आर वॉचिंग देयर मूवी और नेटफ्लिक्स, हम क्या करें. सो उनको इन्वॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. हमें भी उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है और हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी उनको इन्वॉल्व करना है. सो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. फिटनेस, इन्वॉल्वमेंट एंड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. क्योंकि बच्चों का बताना भी है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज किया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड. बिकॉज बाहर में इतने लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग, दे आर सफरिंग. देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड गोइंग ऑन राइट नाउ. सो दे शुड फील ग्रेटफुल कि हम हैं उनके पास, वो घर में है. छोटी छोटी चीज के लिए जब हम ग्रेटफुल होने लगते हैं तो मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स दे जस्ट रिजॉल्व ऑन द गो. सो ये सारी चीजें हैं, बहुत जरूरी है बच्चों को अभी इस सिनेरियो में ये सब चीजें फॉलो करना. True, I got this. Yes, for the kids, I just want to summarize that give the freshly prepared food, fitness, involve them in your activities, and get involved in their activities also.
And the last one was acceptance and gratitude. Practice gratitude. Thank you so much. And my last question is, Doctor, what is the kind of lifestyle you are adopting these days? Like, what are the precautions you are taking? What is your daily routine, lifestyle you are doing, so that at least we can also learn from that and we can adopt few of them? First thing what we are doing is we are focusing a lot on our diet. You know, we have stopped in my family, we are taking light food like khichdi, dal chawal, vegetables, and green vegetables, freshly prepared food, Mm. and that dals and all. Whatever we are eating, we are eating it very, lightly, not much spice, very light food we are taking. And brisk walking is very important. अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग छत पे कर सकते हैं या आपका घर में कैंपस कंपाउंड हो तो वहाँ पे आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं एंड engaging in some kind of activity like I personally I love gardening, so I make sure कि मेरे दिन का 1 घंटा गार्डनिंग में जाए. It gives me a lot of positivity. Yeah. So जो भी चीज आपको पॉजिटिविटी दे वो श्योर आपको करना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज ये जो हमारे आजकल फ्लैट में रहते हैं हम सब लोग, वेंटिलेशन नहीं हो पाता है. तो आई 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 एम आस्किंग एवरीवन थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि अगर सुबह उठ के आप अपने विंडोज को खोलें, लेट द फ्रेश एयर कम इन. नो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी सनलाइट नहीं आ रही है घर के अंदर, विच इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर लाइफस्टाइल. सो अगर जितना हो सके आप सनलाइट में सुबह एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स हमें सनलाइट में जरूर स्पेंड करना चाहिए. एंड हमारे घर में वेल वेंटिलेटेड हो और फ्रेश एयर आए. एंड पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें. एक दूसरे के का जैसे आई सेड इन्वॉल्वमेंट, एक दूसरे के काम में इन्वॉल्व हो. एंड यही सब चीजें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. Yes, obviously means ये टाइम एक्सेप्टेंस करें एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. चला जाएगा, है लंबे टाइम से है बट जाएगा. तो जिस थोड़ा जाएगा जरूर. जिसको हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ मिल रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. ये मैं भी बोलती हूँ कि एंजॉय दैट. One more thing I want to add, which we definitely do, is listening to the chants, either Gayatri Mantra or Vishnu Sahasranam. It is a ritual कि हम लोग जरूर 1 hour से 2 hour तक कोई भी chanting जरूर सुनते हैं. It sets the day with positivity. Yes. शुरुआत, दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होती है when you listen to all these chants. True, I'm definitely going to follow many of these, and I just hope our audience will also follow these advices, and we all together will come out of this pandemic soon. So, Doctor, if Definitely. anyone of our audience wanted to connect to you, so what's the way, like with your contact number or something, or it's your through your page? You can like my page, Dr. Sananda Singh. You can like my page and I will definitely respond to all their queries there. Okay, then I'm going to share your page link also below this link. Thank you so much for giving your valuable time. I know these days you must also be very busy in consultation, and obviously everyone is busy with the family too. So thank you so much for giving your time to us. So Thank you so much, Palji, for this wonderful platform. Thank you, Doctor. It was lovely interacting. Same here. So I just hope आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड वंस अगेन, जिन्होंने भी लाइव ज्वाइन करा था, सो सॉरी अगर आपका भी टाइम वहाँ पे लगा. एंड सॉरी टू डॉक्टर ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. वी आर प्लानिंग टू गो लाइव बट हो जाता है, दिस इज लाइफ. No problem. Stay safe. There's always a way out. Yes, true. There's also just accept and move forward, right? So thank you everyone for watching this episode. Stay safe, happy and healthy, and develop the positive mindset. Bye bye.